آتا ہے کہ جو ہر اوکیزن میں یا ہر طرح سے بلینڈ ہو سکے جا سکے. تو ابھی جو میں آپ کے یوز کر رہی ہوں وہ کلر ایسنس کا شمر کاپر گولڈ شمر یوز کر رہی ہوں, اور ان کا بہت ہی سافٹ اور بہت ہی باریک ٹیکسچر ہے جو لگانے پہ جھڑتا نہیں ہے, اور انر کارنر سے لے کے آگے آئی بال تک میں اس کو استعمال کر رہی ہوں. تو پھر شمرس لگانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے, کس طرح سے اپلائی کرنا چاہیے؟ شمرز جو ہوتے ہیں وہ تو آپ چاہے تو فنگر ٹپ سے کر سکتے ہیں, یا آپ کے پاس اسپونج اپلیکیٹر ہے, برش جسے کہتے ہیں اسپونج اپلیکیٹر اس طرح کا, اس کو اس سے کر سکتے ہیں. لیکن جو گلیٹرز ہوتے ہیں اس کے لیے کچھ آپ کو اسٹکی مٹیریل بھی چاہیے ہوتا ہے تاکہ وہ اسٹک رہے آپ کی آئیز پہ لانگر ٹائم تک. اوکے, میں آپ کو جو بلیشر لگا رہی ہوں یہ کلر ایسنس کا پرل بیس بلیشرز ہے. ان کی کوالٹی یہ ہے کہ اس پہ یہ ٹیراکوٹا بیسڈ ہوتے ہیں یہ, اور ان میں آپ کو نیچرل شین لگتی ہے. جیسے آپ دھوپ میں جاتے ہیں نیچرلی پنکش گلو آیا تھا چہرے پہ, یہ اس طرح کا کر دیتے ہیں. اس میں آپ کو گولڈ بھی نظر آئے گا. گولڈ آپ جو بلشر ہے وہ ہائی لائٹنگ کے لیے آپ استعمال کر سکتی ہیں. آپ جیسے آپ نے جیسے میں نے یہاں پر ڈارکر ٹون کا آپ کے لیے یہاں کارنر میں لگایا چیک پر کو شیپ دینے کے لیے, اور اس کے اوپر ایپل آف چیکس پہ آپ گولڈ بلشر کا ہینٹ دے سکتی ہیں. تو آئی میک اپ ہو گیا, بلشر بھی ہو گیا, اب رہ گئی ہے لپسٹک. کیونکہ آج کل جو ہے ینگ جنریشن میں ایک بہت سوبرنیس آ گئی ہے. ہم بہت ہی زیادہ کہتے ہیں نا, پہلے بہت ڈارکر لپسٹکس یوز کرتے تھے, لیکن اب کیا ہے کبھی کبھی گلاس سے ہی کام چلا لیتے ہیں, یا پھر کچھ ایسا کلر گلاس یوز کرتے ہیں, کچھ کبھی ٹرانسپیرنٹ یوز کر لیا. بٹ جب ہم پارٹیز میں جاتے ہیں تو وی نیڈ سم تھنگ اسپارکلی جو نظر بھی آئے لیکن سافٹ رہے. تو اس قسم کا کچھ آپ یوٹیلائز کرنے والے ہیں؟ ہاں جی, یامنی جب بھی آئی میک اپ کریں تو یہ اس بات کا دھیان رکھیں کہ اگر ڈارک آئی میک اپ ہے تو لپسٹک کو لائٹ ہی رکھے, نہیں تو بہت زیادہ اوور ڈن لگتا ہے. تو ابھی اس اسٹیج پہ میں آپ کے لیے جو یوز کرنے جا رہی ہوں آلموسٹ نیوڈ کلر ہے, جو آپ کے آئی میک اپ ہمیں کافی پرومیننٹ رکھا ہے, اسٹرانگ رکھا ہے. تو جو آپ کا لپ کلر ہے وہ بہت ہی نیوٹرل رہے گا. تو ناظرین, میرا میک اوور ہو چکا ہے. رائٹ فرام مائی میک اپ ٹو مائی ہیئر اسٹائل, ایوری تھنگ از ڈن. بس ضرورت ہے تو ڈریس چینج کرنے کی, لیکن اس سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے اتنا پیارا سا مجھے جو میک اوور دیا ہے, اینڈ اسپیشلی دیٹ ہیئر اسٹائل تھوڑا سا ڈفرنٹ ہے, فنکی ہے, اسٹائلش ہے. تھینک یو سو مچ. ناظرین, اب ضرورت ہے مجھے ڈریس چینج کرنے کی, کیونکہ وقت ہو جا رہا ہے پارٹی میں جانے کا. آپ کیا کر رہے ہیں, آپ بھی انوائٹڈ ہیں الگ پارٹیز میں جانے کے لیے. یار اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے اپنی دوست یامینی کو دیجیے اجازت. خدا حافظ. ناظرین, ہم تو نہیں چاہتے کہ آپ سے اجازت لیں, لیکن وقت کو یہ منظور نہیں, اس لیے ہمیں تو آپ سے اجازت لینی ہی پڑے گی. لیکن اجازت لینے سے پہلے آپ سے اتنا ضرور کہنا چاہیں گے کہ آپ جلدی سے ہمارا پتہ نوٹ کر لیں تاکہ آپ ہمیں لکھ کر بھیج سکیں کہ آپ کو آج کا ایپیسوڈ کیسا لگا. تو ہمارا پتہ اور ای میل آئی ڈی ہے ادا ETV اردو 3rd floor 2E/12 near Videocon Tower, جھنڈے والان ایکسٹینشن, نیو دہلی. ada.urdu@etv.co.in. فی الحال اپنی دوست صورتی کو دیجیے اجازت. اگلی بار آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ایپیسوڈ میں ایک نئے ایکسپرٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. ادا کروں نماز مسجد حرام میں ایسا دن آئے, میرے اللہ یہ سعادت میرے حصے میں ایک دن آئے. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين, والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ETV اردو پر پہلی بار مسجد حرام مکہ مکرمہ سے خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ کے روح پرور مناظر کا راست ٹیلی کاسٹ ہر جمعہ
दोपहर 3 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस्लाम फॉर किड्स यानी इस्लाम बच्चों के लिए, इस प्रोग्राम में कुरान और हदीस के किस्से और वाक़यात, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की ज़िंदगी के हालात और इस्लामी तालीमात के अहम वाक़यात पेश किए जाएंगे। इसमें हमारे लिए सबक है, गाइडेंस है और रहनुमाई का सामान है। इसी के साथ साथ इस्लामी तालीमात की वो बातें भी हम आपके सामने रखेंगे जिसमें मॉरल वैल्यूज़ सिखाई गई हैं, ताकि हम अपने अंदर आला कैरेक्टर, आला अखलाक पैदा कर सकें और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। इस्लाम फॉर किड्स हर इतवार सुबह 9 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। नजरादा BTV उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं खास बात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मुजफ्फरनगर फसाद मुतासरीन को न कैंपों में जगह और न घर जाने की इजाजत, हुकूमत ने भी खींचा हाथ। देवबंद में जमीयत के आलमी अमन सेमिनार में सार्क मुल्कों के मंदूबीन की शिरकत, उलमा की खिदमत पर डाली गई रोशनी। जदीद सर्जरी के मौजूद अबुल कासिम जहरावी की 7 साला तकारीब, दिल्ली में 3 रोजा सेमिनार जारी। अब खबरों की तफसील। सबसे पहले आज की बड़ी खबर। दिल्ली में हुकूमत साजी पर सस्पेंस बरकरार है। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से बढ़ाई गई जैतून की शाख को कबूल करने के लिए कुछ शराइत रखी हैं। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग से मुलाकात करते हुए केजरीवाल ने उनसे मोहलत मांगी है। केजरीवाल ने हिमायत देने की होड़ में लगी कांग्रेस और बीजेपी से उन नुकात पर अपने नजरियात वाजे करने को कहा है जिन पर मुस्तकबिल की हुकूमत की बुनियाद टिकी होगी। केजरीवाल कांग्रेस और बीजेपी के लिए शर्तें तय कर रहे हैं। बिला शर्त तायद करने वालों की नीयत पर उन्हें शुबा है और केजरीवाल उनके माजी से वाकिफ है, इसलिए पार्टी के मुस्तकबिल के हवाले से इंतहाई मुहतात है। वो बिना सोचे समझे कोई ऐसा कदम उठाना नहीं चाहते जिससे अवाम में पार्टी की साख मुतासिर हो। इसलिए केजरीवाल ने सोनिया गांधी और राजनाथ सिंह को खत रवाना किया है। खत में उन्होंने जन लोकपाल बिल, दिल्ली से VIP कल्चर के खात्मे, जनता मोहल्ला सभा को इलाके की जरूरतों पर फैसला लेने का इख्तियार देने समेत 18 मामलों पर अपना मौक़िफ़ वाज़े करने को कहा है। 17-18 मुद्दे हम लोगों ने लिख के भेजे हैं और हमने उनसे कहा है कि ये कोई अनकंडीशनल सपोर्ट नहीं होता। हम चाहते हैं कि आप हर मुद्दे के ऊपर अपना स्टैंड क्लियर कीजिए कि आपको इन मुद्दों पे क्या कहना है। और लास्ट में हमने ये भी लिखा है कि कृपया हर मुद्दे पर अपना नजरिया स्पष्ट बताइएगा, गोलमोल करके मत कहिएगा कि सैद्धांतिक रूप से हम आपके साथ हैं, जब सदन में मुद्दा आएगा तब बताएंगे, इस तरह के जवाब मत दीजिएगा। दिल्ली की जनता जानना चाहती है कि हर मुद्दे पे आपको क्या कहना है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों जमातों ने आम आदमी पार्टी के इन शराइत को टाल मटोल का हरबा करार दिया है। एक बहुत गलतफहमी फैलाई गई आ रही है कि हम लोग ये सोचते हैं कि ये अपना समर्थन वापस न ले लें, ये न ले लें। विधानसभा की एक प्रक्रिया है, अगर हमने एक बार किसी को समर्थन दे दिया तो 6 महीने तक नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं आ सकता है विधानसभा के अंदर। तो आपको जब लोगों ने चुन के भेजा तो इसलिए कृपया करके मेरी आपसे अनुरोध है कि लोगों को गुमराह मत करिए, लोगों को बेवकूफ मत बनाइए, अपनी जिम्मेवारी से मत बचिए। कृपया आगे आइए और सरकार बनाइए और लोगों का भला करिए। इस दिल्ली के लोगों को दोबारा चुनाव में मत झोंकिए। जो तरीका अपनाया है, जानबूझ करके ऐसी शर्तें लगाई हैं कि कांग्रेस अपना उनसे समर्थन वापस ले ले और वो उनको एक बहाना मिल जाए अपने वायदे पूरे न करने का। बहरहाल अरविंद केजरीवाल ने नई शर्तें रखकर कहानी में नया पेच डाल दिया है, जो कांग्रेस और बीजेपी दोनों को ही अटपटा सा लग रहा है। इलाहिदा नजरियात की हामिल जमातें मसाइल पर यकजा होती फिलहाल नजर नहीं आती, यानी दिल्ली में हुकूमत साजी की सूरत बनती मालूम नहीं हो रही है।
ब्यूरो रिपोर्ट ईटीवी न्यूज। बीजेपी की मुस्लिम दुश्मनी और कांग्रेस की आम आदमी पार्टी को मुतबादिल के तौर पर देख रहे हैं। मुस्लिम तंजीमों का मानना है कि बीजेपी को इख्तिदार से दूर रखने के लिए मजबूरन कांग्रेस की हिमायत की, लेकिन अब आम आदमी पार्टी को एक मुतबादिल समझा जा रहा है। मुल्क में जब से फिरका परस्ती का माहौल पैदा हुआ है, मुसलमानों ने सेक्युलर पार्टियों का साथ दिया है। इन सेक्युलर पार्टियों में सबसे बड़ा नाम कांग्रेस का लिया जाता है। मुसलमान हमेशा कांग्रेस का साथ देते आए, लेकिन मुसलमानों को कौमी सतह पर यह शिकायत है कि कांग्रेस उन्हें महज वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती है, लेकिन उनके मसाइल के हल के लिए वादे वईद तो करती है, मगर अमली इक़दाम के नाम पर सिफर है। कुछ मुस्लिम तंजीमों का ये इल्जाम भी है कि कांग्रेस एक तरफ तो बीजेपी का खौफ दिखाकर मुसलमानों का वोट हासिल कर रही है, तो दूसरी तरफ मुसलमानों को दहशतगर्दी के इल्जाम में जेलों में डाल रही है। कांग्रेस के इस दोहरे रवैये से मुल्क भर के मुसलमानों में बरहमी पाई जाती है। दिल्ली इंतखाबात में भी कुछ ऐसे ही हालात रहे, लेकिन मुस्लिम तंजीमों के पास कोई मुतबादिल नहीं था, इसलिए कांग्रेस की हिमायत का ऐलान किया गया। लेकिन इंतखाबी नताइज ने जो तस्वीर पेश की है, उससे आम आदमी पार्टी को मुतबादिल के तौर पर देखा जा रहा है। मुस्लिम तंजीमों का मानना है कि आम आदमी पार्टी का एजेंडा मुसलमानों के मुतालिबात से मिलता जुलता है, लेकिन मुस्लिम तंजीमों ने अभी भी कांग्रेस से पूरी नाउमीदी जाहिर नहीं की है। कि ये बात तो हम कह सकते हैं कि अब तक आपने किसी मुसलमान को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया, अब आप इसका भी तजुर्बा करना चाहिए। मुसलमानों के वोट भी आपको मिलेंगे और हो सकता है कि गैर मुस्लिमों में जो सेकुलर लोग हों वो भी उसकी तायीद करें। तो ये मुतालबा तो आप कर सकते हैं, लेकिन असल ये फैसला करना पार्टी का काम होता है। कि कांग्रेस ने अभी तक मुसलमानों को वो जगह नहीं दी है जो उसे जगह मिलनी चाहिए, चाहे वो पार्टी के मैनेजमेंट का हिस्सा हो, चाहे वो इलेक्शन का हिस्सा हो, चाहे कोई बड़ी जिम्मेदारी का मामला हो। तो एक सबक तो ये छोड़ा है कि सेकुलरिज्म के नाम पे खौफ का पहलू न रखें। दिल्ली असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस के 8 कामयाब मेंबरान असेंबली में से 4 मुसलमान हैं। हालांकि कांग्रेस उम्मीदवारों में एक बड़ी तादाद ऐसे उम्मीदवारों की है जिनके पास वोट बैंक नहीं थे। मुस्लिम सियासी तज्जियाकार मानते हैं कि अगर दिल्ली में दोबारा इंतखाबात होते हैं तो इम्कान है कि मुसलमान मुतबादिल की तरफ जाएं। अब अगर दोबारा इलेक्शन होते हैं तो उस वक्त हालात के लिहाज से हम सोचेंगे पहले से हम कैसे कह सकते हैं कि क्या करना है। लेकिन ये भी देखना है कि चूंकि आम पार्टी को ये चाहिए था कि अपनी हुकूमत बनाए, जैसे उन्होंने बड़े बड़े ऐलान किए कि भाई किसी को बिजली का बिल नहीं देना, या इसी तरह के बहुत सारे ऐलानात हैं। तो क्या यह अमली हो भी सकता है या नहीं? अगर वो साबित कर देंगे तो पूरे नेशनल लेवल पे जो है सो उनकी जय जयकार हो जाएगी। तज्जिया निगारों का कहना है कि कांग्रेस की शिकस्त आवाम की नाराजगी की गम्माज है और इस नाराजगी का फायदा बीजेपी से ज्यादा आम आदमी पार्टी को मिला है। ईटीवी न्यूज, नई दिल्ली। मुजफ्फरनगर फसाद मुतासरीन की कसमपुरसी का आलम यह है कि न तो इन्हें कैंपों में रहने दिया जा रहा है, न इन्हें घर वापस जाने की इजाजत है। यही नहीं, इन्हें मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा है। हुकूमत की तरफ से दी जाने वाली मामूली इमदाद भी बंद कर दी गई है। पेश है मुजफ्फरनगर के पनाहगुज़ीनों के अलम भरी दास्तान। 7 सितंबर 2013 को उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाले बदतरीन फसादात में जहां सरकारी तौर पर 62 और गैर सरकारी तौर पर सैकड़ों लोग मारे गए और दर्जनों अफराद लापता हैं, वहीं मुख्तलिफ कैंपों में 50,000 अफराद से ज्यादा पनाहगुज़ी मौजूद हैं। इन पनाहगुज़ीनों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। जमीयत उलमा और दीगर फलाही तंजीमों ने बहुत हद तक इनकी मदद की, लेकिन सरकारी इमदाद की बात की जाए तो मामला तकरीबन सिफर है। पनाहगुज़ीनों को शर्तों पर मुआवजा दिया जा रहा है, लेकिन ये मुआवजा भी एक दिखावा है। वजीर आला अखिलेश यादव या हुकूमत के दूसरे वज़रा की बात सुने तो लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन सच्चाई क्या है, खुद मजलूमों की ज़बानी सुनिए। ये दंगा पीड़ित हुई थी 8 तारीख को, और उसके बाद में हम 13 तारीख को आ गए थे जी। 5 भाइयों में से एक का मुआवजा दिया है
कहते हैं सरकार आते हैं यहाँ की मुजफ्फरनगर जिले की, कि भाई इन सीवर को हटाओ। अच्छा ये और कहीं भी जाओ जी हमारा मुआवजे में 25,000 में तो नाम है और 5 लाख में नाम नहीं है जी हमारा। क्यों? तहसीलदार ने, एसडीएम ने, इन्होंने सरों ने एफआईडी दबा रखी तहसील में, तो मेरा कोई मुआवजा नहीं है जी। एफआईडी दबाने के बाद में हमें धमकी देता है जी, धमकी देने के बाद में जी फिर मतलब एक जी हम अपने बाहर निकल जाते हैं। तो तहसीलदार ने भी, उनने भी, सब ने हमारी जलीलत कर रखी है जी। इन बयानात से अंदाजा हो जाता है कि यूपी हुकूमत मुआवजा देने, फसाद के असरात को कम करने या शरपसंदों पर लगाम लगाने के बारे में कितना संजीदा है। बात यही खत्म नहीं हो जाती। अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि मुतासिरीन अपने घरों को वापस जाने को तैयार नहीं है। अब घर वापस जाने के लिए है एफिडेविट उन्होंने हमारे से इसलिए बनवा रखे हैं कि आप गांव के अंदर जाओगे ही नहीं, आपको जो सरकार मुआवजा दे रही है इस वजह से दे रही है कि आप कतई भी गांव के अंदर नहीं जाने के। इसलिए नहीं जा रहे जी क्योंकि हमारी सब धमकी देते हैं, जाट भी लोग कह रहे हैं कि दंगे जो गांव में आओगे तो तुम्हें मार डाल देंगे, क्योंकि हमारा बब्बा इस्लाम भी मारेगा उधर ही। हम जा रहे हैं जी, हमें डर लगता है जी उनसे। डर किस बात का? अगर आप अपने घर जा रहे हैं, अपनी जगह पे जा रहे हैं, तो डर किस बात? नहीं जी, जाने के नहीं जी हम अपने घर वापस करेंगे क्या जाके? हमारा क्या घर है वहाँ? जब पेट्रोल छिड़क के उन्होंने मस्जिदों में, हमारे घरों में आग लगा दी तो क्या रह गया हमारा वहाँ? हमारी बहू बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ किया गया तो क्या है हमारा गाँव में? पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में ये काम हुआ। ओमवीर सिरोही जो थाने का इंचार्ज था, 1000 फोन मेरे गाँव से और मैंने खुद किए हैं, उसकी मौजूदगी में ये काम हुआ है जो मेरे पापा को काट दिया गया। पिछले चंद दिनों में इन कैंपों में 40 बच्चों की मौत हो चुकी है। आम लोगों को शायद मालूम न हो कि यूपी हुकूमत में तकरीबन 1 दर्जन मुस्लिम वज़रा हैं और तकरीबन 6 दर्जन मुस्लिम एमएलएज हैं। लेकिन इन नुमाइंदों को इनकी कितनी परवाह है, इसका अंदाजा आम लोग आसानी से लगा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद यूपी हुकूमत को होश आया और उसने इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी। एसआईटी को हिदायत दी गई कि वो अपनी रिपोर्ट 1 माह के अंदर पेश करे। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर यूपी हुकूमत कितनी ईमानदारी से अमल करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। खास बात देखिए ईटीवी उर्दू सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। जमीयत उलमाए हिंद की दिल्ली के रामलीला मैदान में अजीम शान आलमी अमन कॉन्फ्रेंस। बेसिकली इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो इम्पोर्टेंट स्कॉलर्स हैं, उलमा हैं, उनको जमा किया जा रहा है। आपका रिलेशनशिप पड़ोसियों के साथ कैसा होना चाहिए, अपने मुखालिफों के साथ कैसा होना चाहिए, दूसरे मजहबों के मानने वाले लोगों के साथ आपका ताल्लुक, रिलेशनशिप कैसी होनी चाहिए। जमीयत उलमाए हिंद के जेर एहतमाम दिल्ली के रामलीला मैदान से आलमी अमन कॉन्फ्रेंस का रास्त टेलीकास्ट 15 दिसंबर बरोज इतवार सुबह 10:30 बजे से सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। अदा करूं नमाज मस्जिद हराम में, ऐसा दिन आए मेरे अल्लाह, ये सादत मेरे हिस्से में एक दिन आए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व सल्लल्लाहु वसल्लम अला अब्दिही व रसूलिही नबीना मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिना الصراطल मुस्तकीम صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين। ईटीवी उर्दू पर पहली बार मस्जिद हराम मक्का मुकरमा से खुतबा जुमा और नमाज जुमा के रूह परवर मनाजिर का रास्त टेलीकास्ट हर जुमा दोपहर 3 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर।
ٹی وی اردو نیوز میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم اور آپ دیکھ رہے ہیں خاص بات۔ دیوبند میں جمعیت علماء ہند کا سہ روزہ بین الاقوامی عالمی امن سیمینار جاری ہے۔ سیمینار کے دوسرے روز عالمی امن، بھائی چارے اور ہندوستان کی آزادی میں علماء کے کردار پر روشنی ڈالی گئی۔ اس کانفرنس میں سارک ملکوں کے نمائندے بھی شریک ہیں۔ جمعیت کے جنرل سیکریٹری مولانا محمود مدنی کا کہنا ہے کہ اسلام کے حقیقی پیغام کو برادران وطن تک پہنچانا بھی اس کانفرنس کا ایک مقصد ہے۔ پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، برما، نیپال، انگلینڈ، اصل میں یہ سارک کنٹریز کے جو ریلیجس اسکالرس ہیں، دھارمک ریلیجس اسکالرس ہیں، ان کو جمع کیا گیا ہے۔ دنیا میں خاص طور سے اس انڈین سب کانٹیننٹ میں پیسفل انوائرمنٹ کیسے کریٹ کیا جائے، اسلام کی جو صحیح پیغام ہے امن کے بارے میں، اس کے بارے میں چرچا ہوگی۔ ماڈرن سرجری، دانتوں کے جدید طریقہ علاج، ہڈیوں کو جوڑنے کا جدید طریقہ، ادویات کے موجود اور طبی میدان میں گراں قدر خدمات انجام دینے والے ابوالقاسم زہراوی کو ان کے یوم پیدائش پر 1000 سال بعد یاد کیا جا رہا ہے۔ دہلی میں منعقدہ سہ روزہ بین الاقوامی کانفرنس کا افتتاح مرکزی وزیر کے رحمان خان نے کیا۔ ابوالقاسم زہراوی ایسے عظیم سائنسداں جنہوں نے قرآن کریم اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے التصریف جیسی شاہکار تصنیف کی اور دنیا کو توہم پرستی سے نکال کر جدید سائنس سے متعارف کرایا۔ آج جس علم کو ماڈرن سائنس کا نام دیا جا رہا ہے، ابوالقاسم زہراوی نے 1000 سال پہلے اس پر ریسرچ کی۔ اس عظیم ڈاکٹر، سرجن، مفکر اور میڈیکل سائنس کے ماہر کے کارناموں کو دنیا کے سامنے لانے کے لیے دہلی میں 3 روزہ بین الاقوامی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ پہلے شخص تھے نہ صرف اسلامی دنیا میں بلکہ پورے اس وقت کے عالم میں جنہوں نے اس کو تحریر میں لایا، کتاب لکھی، اور ان کی کتاب کتاب التصریف، وہ کتاب 500 سال تک نہ صرف عرب و مسلم دنیا میں بلکہ یورپ میں، انگلینڈ میں، کیمبرج میں، پڈوا یونیورسٹی میں، جرمنی میں وہ ٹیکسٹ بک سرجری رہی۔ تو ہم نے بھی ٹیکسٹ بک لکھی تھی کتاب، لیکن ایک ایڈیشن نکلا، 2 ایڈیشن نکلا، لیکن جو کتاب 500 سال تک ٹیکسٹ بک آف سرجری رہے اس وقت کی دنیا میں، اس وقت ظاہر ہے اس وقت امریکہ نہیں تھا، اس وقت نہیں، تو اس کے پیچھے کتنی محنت ہوگی اور اس میں کتنا علم اس میں سمایا ہوا ہوگا، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ جو اسپینش ہیں، عرب بیک گراؤنڈ کے ہیں، ان کے 1000 ایئرز مکمل ہوئے ہیں، وہ فادر آف ماڈرن سرجری کہلاتے ہیں، اس لیے ہم ان کے یادداشت کو تازہ کرنا چاہتے تھے۔ اتفاق سے ایک لینڈ مارک 1000 ایئرز دسمبر 14 ان کی اینیورسری ہے، تو اس لحاظ سے ان کو منعقد کیا گیا۔ دانشوروں کا ماننا ہے کہ اسلامی دنیا کا دامن سائنسی ایجادات سے مالا مال ہے۔ ہمارے اجداد کے کارنامے ایسے ہیں جن سے پوری دنیا اور خاص طور سے نئی نسل کو متعارف کروانا ضروری ہے تاکہ ہم اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چل سکیں۔ تنزلی ہوئی ویسے ویسے ہم خود اپنے ان عظیم شخصیت کو بھولے جس کے کو دنیا تو قبول کر چکی ہے اور ہم اس سے انسپائر نہیں ہو رہے، اس سے کچھ جذبہ نہیں بیدار کر رہے ہیں، ہم اس میدان میں نہیں جا رہے ہیں۔ تو ان کو منتخب کرنے کا یہ ہے کہ ایک ایسی شخصیت جس کو دنیا ریکوگنائز کر چکی ہے، وہ سورس آف انفارمیشن بھی اور انسپریشن کا ہے، خاص طور سے نوجوانوں کو، عمومی طور پہ اور مسلمان نوجوانوں کو خاص طور پہ یہ جاننا ہے کہ ان کے آباء و اجداد کا ہر میدان میں بے شمار کام ہے۔ اس سہ روزہ کانفرنس میں ابوالقاسم زہراوی کے ایجاد کردہ مختلف آلات اور ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کے لیے ایک نمائش کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ اتر پردیش مدرسے کے کچھ اساتذہ نے کانگریس کے نائب صدر راہل گاندھی سے ملاقات کی۔ وفد نے کانگریس اقلیتی خورشید کے ہمراہ راہل گاندھی سے ملاقات کی اور تنخواہ کے علاوہ انہیں درپیش مسائل سے واقف کرایا۔ بتایا جا رہا ہے کہ راہل گاندھی نے ٹیچروں کے مسائل حل کرنے کا یقین دلایا ہے۔
कर्नाटक में औकाफी अमलाक की आमदनी में इजाफा दर्ज हो रहा है। मजमूई आमदनी में इजाफे की वजह से वक्फ बोर्ड को जायद आमदनी हासिल होगी। हर साल वक्फ बोर्ड को औकाफी इदारों से तकरीबन 2 करोड़ रुपए हासिल हो रहे हैं। साल 2013-14 के दरमियान बोर्ड को 3 करोड़ रुपए तक की आमदनी हासिल होने की तवक्को है। का जो कंट्रीब्यूशन आ रहा था वो तकरीबन 1 करोड़ 80 लाख से 2 करोड़ था। अब अल्लाह के फजल से 2.5 करोड़ से 3 करोड़ तक एक इनकम कंट्रीब्यूशन होगा। ये कंट्रीब्यूशन जैसा इनका ज्यादा होगा, इसी तरह से इदारों का इनकम भी बढ़ गया। जब इदारों का इनकम बढ़ता है जब भी हमारा कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है। मिसाल के तौर पर मदरसा में इनकम थी तो माहाना तकरीबन 3 लाख के करीब थी। आज अल्लाह के फजल से 7 से 8 लाख तक वहां की इनकम होगी। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे की बात। मजहब की न सूबों की न फिरकों की फकत वल्लाह के हर दिल की ज़बान है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझा ना। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देख। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं। ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। बरसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी। होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। मयारी शेर व अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ETV उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर का जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। जिंदगी के इस सफर में सच्चाई हमारी हमसफर हो। हम दिखाते हैं वही खबर जो समाज के लिए हो आईना। गैर जानिबदारी हमारा शिवा। खबर वही जिस पर हो आपको एतबार। देखिए खबरनामा इन औकात पर। तुझी को जो या जलवा फरमान देखा, तुझी को जो या जलवा फरमान देखा, बराबर है दुनिया को देखा न देखा, बराबर है दुनिया को देखा न देखा। फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं खास बात। मगरबी बंगाल हुकूमत ने 10,000 मदरसों को मंजूरी दी थी, लेकिन सरकारी ग्रांट के बगैर दी गई ये मंजूरी मदारिस के जिम्मेदारों को मुतवज्जह नहीं कर पाई। अब मदरसा बोर्ड ने 212 मदरसों के लिए सरकारी मंजूरी का ऐलान किया है। मदरसा बोर्ड के चेयरमैन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही। मगरबी बंगाल में सरकारी मदरसों की तादाद 614 है, जबकि गैर मंजूर शुदा मदारिस की तादाद हजारों में है। इक़्तिदार में आने के बाद वज़ीर आला ममता बनर्जी ने रियासत के 10,000 मदारिस को मंजूरी देने का ऐलान किया था, लेकिन बगैर ग्रांट के मदरसों को मंजूरी देने का हुकूमत का फैसला बेफैज साबित हुआ। बताया जाता है कि मदरसा बोर्ड को मंजूरी के लिए कोई दरखास्त नहीं मिली, जिसके बायस बोर्ड ने 212 मदारिस को मंजूरी देने का ऐलान किया है, जहां मिड डे मील दिया जाएगा। ताहम इन मदरसों को कोई सरकारी ग्रांट हासिल नहीं होगी। মাদ্রাসা অর্থাৎ 10টা মাদ্রাসাকে তিনি দেওয়ার একটা প্রস্তাব রেখেছেন, এগুলো অ্যাপ্রুভাল দেওয়ার জন্য। সেগুলো আনএডেড হিসাবে আমরা দেওয়া শুরু করে দিয়েছি এবং এখন পর্যন্ত 212টা মাদ্রাসাকে আমরা আনএডেড হিসাবে রিকগনিশন দিয়ে দিয়েছি। मदरसा बोर्ड ने रियासत भर में मॉडल मदरसा बनाने के अपने फैसले पर अमल करते हुए 40 मदारिस का इंतखाब किया है, जिनमें कोलकाता भी शामिल है। हुकूमत की जानिब से तश्कील दी गई माहिरीन की कमेटी की किताबों को बोर्ड ने मदरसा निसाब में शामिल करने का फैसला किया है। মাদ্রাসার ঐতিহ্যকে বজায় রাখার জন্য আরবি ইসলামের পরিচয়
এবং বাংলা